मुझे मालूम नहीं क्या नाम अधिकारी का है, कोई बोल रहे तो चीमा है कीमा है क्या मालूम नहीं, तो चीमा है कीमा है क्या मालूम नहीं, बोल रहे तो चीमा है कीमा है क्या मालूम नहीं। जो कि एक संविधानिक पद के उपर बैठा है, SDM की पोस्ट है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ SDM ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਨ ਡਿਊਟੀ SP ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਲੌਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਓ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਗਰ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। धन्यवाद जी। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंच से कहा कि इस तरीके के कुछ शब्द कहे, तो उनसे भी आप मांग करते हैं कि माफी मांगे? बिल्कुल जी, देखिए तो सभी से ये खाली उनसे नहीं है कि जो यहाँ पे भीड़ में इकट्ठे होकर जिन्होंने शब्द कहे हैं उनके लीडर से भी हमारे को यही मांग है। अगर उनका कोई लीडर गलती करता है, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं या पूर्व PM है, किसी को अधिकार नहीं है किसी सिख कौम के किसी बंदे को टारगेट करके आप उसको खालिस्तानी बोलो और उसके खिलाफ गलत बयानबाजी करो। जो बाजार में प्रदर्शन हुआ है, आइडेंटिफाई हुए नारे लगाते हुए या
सोशल मीडिया पे जो लोग आइडेंटिफाई हो ये हमारे पास कुछ इसके स्क्रीनशॉट हैं, कुछ वीडियो भी हैं हमारे पास। जयराम जी ने तो मंच से बोला है ना, चीमा कीमा मंच से बोला है कि ये चीमा कीमा कौन है। आप किसी प्रशासनिक अधिकारी को बोल सकते हैं कि एसडीएम चीमा कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। चिम्मा एक चीमा एक कास्ट है, गोत्र है, आप उसका कीमा का करने का क्या मतलब कहीं ना है? कहीं शुरुआत आपका कहना है कि जयराम के भाषण हाँ, से जयराम ठाकुर जी ने की है ये। नहीं, पहले तो बाजार में नारे लग चुके थे। शुरुआत बिंदल जी ने आज बिंदल जी ने की है वहां। उन्होंने पहले बिंदल जी ने बोला है, उसके बाद क्या था वहां जो इन्होंने एक धार्मिक क्लेश करना चाहा, पौंटा के अंदर विवाद करना चाहा, वो इस अधिकारी ने होने नहीं दिया। उनकी वो पॉलिसी खत्म होगी क्योंकि वो गुंडे साथ में लेके आए थे नाहन से। असली कहानी है ये। वो कहानी इनकी खत्म होगी। अब उन अफसरों में इनको सॉफ्ट टारगेट कौन था? सॉफ्ट टारगेट था एसडीएम, क्योंकि वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता था, उसको टारगेट करना शुरू कर मुख्य बात तो यह प्रशासन ने अनुमति क्यों दी? जब पता था ऐसा माहौल है, पुलिस प्रशासन की तरफ से अनुमति क्यों दी गई? ये तो इसका हमारा कोई लेना देना नहीं ये है। तहकीकात का मामला है। ये तो उनका प्रशासन जाने, का अंदरूनी वो मामला है, जाने। अपने आप हमारा तहकीकात मुद्दा करें। तो ये है इसके ऊपर कि उन्होंने सिख क्यों- कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जाता है। हमारा मुद्दा ये है। अभी आपके आरोप खाली जयराम ठाकुर पे किसके ऊपर है? नारे किसने लगाए बाजार में? हमारे आरोप तो सारे उनके ये ऊपर काम हैं, पुलिस का जिन्होंने है, भी ये किया है, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। हमारी नहीं तो प्रशासन डीएसपी से साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, उनको नहीं टारगेट किया गया। एसपी साहब भी थे, एसपी साहब भी थे वहां पे, टारगेट सिर्फ एसडीएम साहब को किया गया। जब डंडा लेकर के एसडीएम साहब चले हैं उस समय वहां पर एसपी साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, तो उनको क्यों नहीं टारगेट किया गया? सिर्फ एसडीएम क्यों दिखा उनको? एसडीएम इस करके दिखा क्योंकि सिख कौम से बिलोंग सिख कौम करता है। से कारण बताया जा रहा है यही कि है। मूल रूप से कांगड़ा के रहने वाले सिख परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ये भी हमें तो अभी पता लगा कि सिख कौम से हैं, अदरवाइज हमें तो पता नहीं था। लेकिन टारगेट सिख कौम को किया जा रहा। खालिस्तानी कहने का क्या मतलब है? ये खालिस्तानी कहना, ये तो सिखों को ही कहा जाता है, उग्रवादी और ये मुसलमानों ये को कहा जयराम जाता है। ठाकुर या राजीव बिंदल ने निकहा, कुछ अराजक तत्व है बीजेपी या हिंदू जागरण मंच के जुड़े हुए, उन्होंने लिखा है। जयराम ने मंच से जिन्होंने भी कहा, जयराम ठाकुर ने मंच से बोला से है, कहा मंच से चीमा कीमा। चीमा कीमा बोला, चीमा खालिस्तानी तो एक नहीं कौम बोला। है, सिख कौम से बिलोंग करती है कौम है चीमा। जिसने भी कहा उसके एक कौम को आप टारगेट कर रहे हो। निखिल जी, आप ये इस बात को लेके श्योर हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को ये पता है कि ये जो चीमा जो एसडीएम साहब हैं ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल श्योर उनको पता है इस बात? जी बिल्कुल। एक मुख्यमंत्री रहा हो जिले राज्य का, इतना बड़ा अगर वो मंत्री मंत्री पहली बार किया ही नहीं। चलो जो इतना बड़ा मंत्री रहा है और होने वाला सीएम भी है, शायद सेंटर में भी जाए, वो उसको नहीं पता कि सीमा साहब हिमाचल कैडर के एक अफसर हैं। नहीं वो नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ। इन्होंने कहा ना कि हमें भी अब पता लगा कि वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री आप लोग श्योर हैं इस बात को लेके कि इसी मुख्यमंत्री चीज का को जवाब है। पता इसी वो चीज का जवाब इस है। करके- से हैं वो- और मैं इस सिख कम्युनिटी को टारगेट करूं, वो इस कर हम इस करके श्योर हैं। आवाज उठती है, इनको खालिस्तानी बोला जाता है। जयराम जी के जो नीचे उनके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इनको खालिस्तानी बोला जाता है, तो इट मीन्स कि उनको पता है कि ये सिख कौम से हैं। इसमें आप जो खालिस्तानी शब्द नहीं होना। क्या इसकी शिकायत आप पुलिस प्रशासन को सौंपेंगे? जुड़ सौंपेंगे। बिल्कुल सौंपेंगे, जरूर सौंपेंगे। लिखित में आज हम ये वार्निंग दे रहे हैं। 4-5 दिन पहले जो आए थे वहाँ पे एसडीएम चीमा साहब भी थे, डीएसपी साहब से पुलिस प्रशासन सारा था। उस दिन टारगेट किसको किया गया? मुसलमान लोगों को टारगेट किया गया 5 दिन पहले। 5 दिन के बाद आज सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया। इसका क्या मतलब है? सिख कौन है, कहाँ से आए हैं सिख, मुसलमान कहाँ से आए हैं? मुसलमान की हमारे पास बात नहीं, उस दिन टारगेट किया गया, हम उनकी बात कर रहे हैं भाई। 5 दिन के अंदर 2 हादसे होते हैं, तो आज सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। चीमा साहब बोल सकते हैं, गेस्टेड अफसर है, हिमाचल कैडर का अफसर है वो। उसको उस दिन कैसे बोला था अपने 5 दिन पहले कि चीमा साहब भरी पब्लिक के अंदर आपको बोलने का पता नहीं है, बोलना सीखो। एक गेस्टेड अफसर को जो कमांड कर रहे हैं, एक तहसील के अंदर पूरी तहसील को संभाल रहे हैं, उनको ऐसा बोलो ना सामने, ये शोभा नहीं देता। वो सीएम होने वाले सीएम है, बड़े बड़े मंत्री है, बड़े नेता है, और आज जो शब्द उन्होंने कहे
एसडीएम के लिए नहीं कहे, एसडीएम के बारे में वो नारे लगाते मुर्दाबाद जिंदाबाद जो मर्जी लगाते, हमारे को कोई एतराज नहीं था, प्रशासनिक अधिकारी है। मगर उन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट किया है, चीमा वीमा क्या मतलब होता है? इंदर साहब बोल रहे हैं भूतपूर्व, आज इतने इसमें अपने भूतपूर्व श्री जयराम ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे आना पड़ा, इतना बड़ा हादसा था। इसका मतलब दंगे कौन भड़का रहा है? दंगे भड़काने की कोशिश, ये भी आज भी दंगे भड़काने की कोशिश हुई है। हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं चंद लोग, पूरी हमने अपनी कम्युनिटी को अभी मैसेज नहीं दिया है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कल तो 4 दिन पहले तो साहब ने आज पोंटा में भाषण दे दिया सिख कम्युनिटी के खिलाफ। तो हमारे को और दूसरी कौम को क्या चाहते हैं? हम कहाँ से आए हैं? जैसे भाई साहब ने बोला है कि हमारे को कम से कम डेफिनेशन तो बता दो, और हमारी जो हिंदुस्तान आज़ाद कराने के लिए जितनी हमारी कुर्बानियाँ हुई हैं उसकी परसेंटेज निकाल के देखो, कितनी परसेंटेज है सिख कौम की। जब बॉर्डर पे झगड़ा होता है पाकिस्तान के या किसी कंट्री के साथ, सबसे पहले वहाँ पे पंजाब आगे होता है।